Now today we'll implement code first from the scratch. वापस से एक बार आपको बता देते हैं, we'll add few more things. थोड़ा सा उसको expand करता है. So code first approach तो already आपको पता है. So code first approach में क्या होता है? We create the model by writing classes and their relationships using C# and VB, any language. Then from this model, the model means ADM. Using this ADM, we'll generate database when we use it. तो क्या स्टेप्स है? पहला स्टेप है create classes and their relationships. दूसरा स्टेप क्या है? Create a context class. ठीक है. तीसरा स्टेप क्या है? Configure connection string. चौथा स्टेप क्या है? Use the context will automatically generate apps. पांचवा स्टेप क्या है? Use context will automatically generate apps. पांचवा स्टेप क्या है? Use migrations. तो एक स्टेप को हम इम्प्लीमेंट करते हैं. तो सबसे पहले वापस एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है. विजुअल स्टूडियो 22 में जाएंगे. यहाँ पर लेंगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट. क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में यहाँ पर लेंगे ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क. कोड फर्स्ट also code using code first. Studio folder. Select folder. Create MVC without HTTPS. So the first step is to create the classes in their relationship. Now in this example, we'll create the multiple classes with their relationships. Now to create the model, we'll use the models folder. We'll right click on the models folder. We'll go to the aid. We'll add a class. Now the first class that we'll do is DPT. Now in the DPT class, so we'll say int64, DPT ID, saying DPT need. Fine. Now then we'll create a class EMP. We are creating multiple classes here. So in EMP class, we'll say EMP ID, int64, EMP ID here, EMP name. Else address, email ID, mobile number, and children. So what we did, we had created two classes, DPT and EMP with required properties. Now second step that we'll do is we'll define the relationship. So relationship को define करेंगे. Now to define relationship, so we create properties of type entity class. तो इन दोनों को basically क्या लेंगे? Entity classes, because they are going to participate in the process of database creation or database programming or database manipulation. So we create the properties of type entity in related classes. For example,
So one employee will have one department. So to reflect this relationship, so what we do, we create one property of type DPT in EMP class. तो यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, सो एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। तो पहला पार्ट क्या है रिलेशनशिप का, कि एक एम्प्लॉय में एक डिपार्टमेंट होगा। तो एम्प्लॉय एंटिटी के अंदर हम एक प्रॉपर्टी बनाएंगे, किस टाइप की, डीपीटी टाइप की। तो यहाँ पर we'll create the property of type DPT that will be a single object DPT. Fine. So it will generate vice versa. Reverse में हमें क्या करना पड़ेगा, so vice versa. One department contains many employees. एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज हो गए, so we need to create list of employee in DPT. तो DPT के अंदर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय बनाएंगे, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ डीपीटी में हम क्या बनाएंगे, सॉरी डीपीटी में लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय बना देंगे। सो लिस्ट ऑफ ईएमपी लेवल से ईएमपी, ठीक है। सो लिस्ट ऑफ ईएमपी, हियर वी हैव द ईएमपी। सो वाइस वर्सा, सो यहाँ पर सिंगल ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट है ईएमपी। इससे क्या होगा, सो बाय कन्वेंशन अगर आप देखोगे तो बाय कन्वेंशन जो है क्या होगा, सो बाय कन्वेंशन और डीपीटी क्लास एंटिटी क्लास क्या बनेगा डेटाबेस में, डीपीटी स्टेबल। सो बाय कन्वेंशन क्या होगा, डीपीटी क्लास के लिए डीपीटी स्टेबल बनेगा डेटाबेस के अंदर। अगर आपने ध्यान दिया है पहले वाले एग्जांपल में, तो डीपीटी नाम का टेबल बनेगा और डीपीटी टेबल में वो प्रॉपर्टी प्राइमरी की बनेगी जिसके नाम में डीपीटी लगा है और एंड में आईडी है। तो जो न्यूमरिक है, पहला तो कंडीशन होना चाहिए वो प्रॉपर्टी न्यूमरिक होनी चाहिए और उस प्रॉपर्टी का नाम जो है क्लास और उसमें आईडी होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, प्राइमरी की बन जाएगी, कहाँ पर, टेबल के अंदर। आपने ध्यान दिया है तो ये कन्वेंशन है, ठीक है। और डीपीटी नेम नाम का एक फील्ड बन जाएगा। सो यहाँ पर क्या स्ट्रिंग है तो वहां पर क्या बनेगा, varchar max। उसी तरह सो ईएमपी जो क्लास है उसके लिए भी क्या बनेगा, ईएमपी नाम का टेबल बनेगा और ईएमपी टेबल के अंदर ईएमपी आईडी क्या बन जाएगा, प्राइमरी की, और ईएमपी नेम बनेगा, तो एड्रेस बनेगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी प्रॉपर्टीज बनेगी कहाँ पर, टेबल के अंदर। उसके अलावा सैलरी। इसके अलावा इट विल ऑटोमेटिकली ऐड वन फॉरेन की, सो इट विल ऐड a DPT table. So DPT table, so DPT's primary key as a foreign key in EMP by convention। ये by convention होगा, मतलब by convention मतलब by default हो जाता है, उसके लिए आपको कोई एडिशनल कोड, एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, एडिशनल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब by convention ही हो जाता है, ठीक है। तो by convention ही हो जाता है। सो DPT क्लास एंड EMP क्लास, ठीक है। तो बाय कन्वेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, तो यहाँ पर भी फॉरेन की बन जाएगी ईएमपी के अंदर डीपीटी आईडी, तो इसका प्राइमरी की ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या बन जाता है, फॉरेन, जब डेटाबेस जनरेट होगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं क्लासेस के बीच में। तो अभी एम्प्लॉय रिलेटेड विद डीपीटी वेयर वन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड विद वन डीपीटी ऑब्जेक्ट and DPT is related with employee where one DPT contains the list of employees, multiple employees. Fine. Now, once we create the classes in their relationships, now we are not overriding the convention. Right now, we are using a convention. Later on, we'll see how we can override these conventions. Fine. So by convention, yoga. Now, next step. So what we need to do, we need to create the
context class. Now to create the context class, what you need to, context class is the actual class who interact with the database, and it will tell the, we can say entity framework. So these are the entity classes, and please generate the tables and collections and do required mapping between the database and the collections or classes of that. ये कौन करेगा? Context class. To create a context class, what we do? We create our own class. We create a class. एक क्लास बना देंगे by any name, किसी भी नेम से आप बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, but inherited from built-in class called db context. तो उसको db context built-in class से क्या करना पड़ेगा? Inherit करना पड़ेगा. So उसको built-in class db context से क्या करना पड़ेगा? Inherit करना पड़ेगा. ठीक है. And this db context is a built-in class. ये db context क्या है? So built-in class which act as a bridge between your database and application. ये आपके एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में ब्रिज का काम करेगा. एप्लीकेशन जो भी बोलेगा उसको डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करेगा, डेटाबेस में जो भी आएगा एप्लीकेशन में नहीं. तो ये बहुत सारी चीजें करेगा. डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करना, कनेक्टिविटी को डीएस्टैब्लिश करना, स्टेट को चेक करना, कमांड क्रिएट करना, क्वेरी क्रिएट करना, क्वेरी को फायर करना, क्वेरी के रिजल्ट को मैप करना. जब इंसर्ट अपडेट डिलीट करोगे तो इंसर्ट क्वेरी को फायर करना, अपडेट क्वेरी को फायर करना, डिलीट क्वेरी को फायर करना. जब आप नया क्लास ऐड करोगे तो क्रिएट टेबल क्वेरी को फायर करना. तो सारी चीजें जो है कौन करता है? डीबी कॉन्टेक्स्ट. So your context class should be going to inherit from DB context or a built-in class. So ये class किसने दिया आपको? So this class is provided by. So किसने दिया है? So provided by entity framework. So entity framework ने दिया. So by default it will be not available. तो ये कौन सा namespace में होता है? System dot data dot entity namespace के अंदर आपने ध्यान दिया last example में तो. And this is provided by the entity framework, so it's not by default available. ये by default आपको create में नहीं होगा. It's not available by default. So it's not available by default. So by default आपको ये available नहीं होगा. तो आपको क्या करना पड़ेगा? So you need to install the entity framework. So you need to install entity framework. So entity framework install करने के लिए आपके पास क्या है? Using NuGet package manager. So NuGet को use करके आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो NuGet क्या है? पैकेज मैनेजर है which will help you to install the .NET packages from the NuGet.org रिपोजिटरी होता है. ठीक है. तो अभी धीरे धीरे क्या होगा? डिफिकल्ट होती जाएगी चीजें, क्योंकि अभी आप एडवांस लेवल में जा रहे हैं. तो आपको और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी. अगर आप पहले से कम एनर्जी लगाओगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी. ठीक है. और प्रैक्टिस में टाइम डालना पड़ेगा. तो पहले अगर 1 आवर डाल रहे हैं, अभी 2-2.5 घंटे आपको डालने पड़ेंगे, क्योंकि और चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो. तो आपको इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने में टाइम लगेगा. सो पढ़ के एक स्टेप को प्रॉपर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. कहीं पर भी गड़बड़ हो गई फिर आपका काम नहीं बनेगा. तो एनडीए फ्रेमवर्क को भी क्या करना पड़ेगा? NuGet पैकेज मैनेजर के थ्रू उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो NuGet पैकेज मैनेजर से 2 वे से इंस्टॉल कर सकते हैं. एक तो आप क्या यूज कर सकता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. दूसरा आप क्या यूज कर सकता है? सो कमांड लाइन टूल से, कमांड प्रॉम्प्ट से भी उसको इंस्टॉल कर सकता है. तो कमांड लाइन से इंस्टॉल करेंगे तो कौन सा कमांड यूज करेंगे? इंस्टॉल डैश पैकेज. और यहाँ पर हम कौन सा पैकेज इंस्टॉल करेंगे? एनडीए फ्रेमवर्क. आप चाहे तो स्पेसिफिक वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं बाय स्पेसिफाइंग दी वर्जन नंबर, बट इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई द वर्जन नंबर इट विल इंस्टॉल दी लेटेस्ट पैकेज. सो लेटेस्ट पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे. Let's go back to the Visual Studio and install the entity framework. So how we can install it? So we'll go to the package manager console, और package manager console के अंदर यहाँ पर बोलेंगे something called install dash package, और यहाँ पर क्या बोलेंगे? entity framework. तो इसको हम इंस्टॉल करेंगे. पैकेज मैनेजर कंसोल से इंस्टॉल हो गया. ठीक है. नाउ देन वी क्रिएट द कॉन्टेक्स्ट क्लास. तो कॉन्टेक्स्ट क्लास को हम क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे. तो कॉन्टेक्स्ट क्लास यू कैन क्रिएट बाय एनी नेम. So here I am creating a class with a name company context and will inherit this company context from DB context. So we'll inherit it from the DB context here. So DB context. And now here, so and for DB context, which namespace we need to use? System.data.entity, and this is available only in entity framework. So you need to first install this. Now here, so what we can do is, so company context. Then here, what we can do is
So here we can create DB-set type of property. So next step क्या है? So next step है, तो ये आपका क्या हो गया? So 2.1 suppose. 2.2 में, so what we can do? So in 2.2, so we'll say, so create DB-set type of property for every entity class in your context class. तो आपके context class में हर एक एंटिटी क्लास के लिए डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर सॉरी कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर एक डीबी सेट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी. सो व्हाट दिस डीबी सेट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी विल डू? सो इट विल हेल्प एंटिटी फ्रेमवर्क टू जनरेट टेबल्स. टेबल जनरेट करने के लिए हेल्प करेगी, गाइड करेगी. एंड सो दिस प्रॉपर्टी विल गिव यू access to all the rows from table in the form of collection of objects of that entity class. So create DB-set type of property for every entity class in your context class. It will help entity framework to generate table, and this property will give you access to all the rows from the table in the form of collection of objects of the entity class. ठीक है, तो अभी दो क्लासेस हैं, तो दोनों के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? डीबी सेट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी बनाएंगे. सो डीपीटी के लिए एक बना देंगे. सो डीपीटी नाम से नेम यू कैन पुट एनी. सो आई ऑलवेज प्रेफर टू पुट एस विद द क्लास नेम. सो EMP here, and we'll say EMP. So while this we are telling to the entity framework, so these are the two entity classes, and I'm going to generate a table for this. And when a table gets generated for the DPT class, please allow me to access or refer the rows from the DPT using this DPT's collection. Whereas when table is generated for the EMP class, please allow me to access the rows from this, that particular table using EMP's collection. Now the next step is, so configure the connection string. Now how your context class or how your DB context class will come to know to which SQL server or database server or database you want to interact or you want to generate this table. So आपकी context class को कैसे पता चलेगा कि आप कौन से सर्वर के साथ काम करना चाहते हैं, डेटाबेस सर्वर के साथ काम करना चाहते हैं और कौन से डेटाबेस के साथ काम करना चाहते हैं? तो वो इंफॉर्मेशन देने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कनेक्शन स्ट्रिंग. So connection string is thing which will tell the context class about server. So database server. So database server के बारे में बताएगा, and database server, database, and it will also provide you authentication information. So इसमें मैं authentication information भी देनी पड़ेगी, using which your front end, that means your entity framework will able to establish the connectivity with the back end of the. तो दो टाइप की कनेक्शन स्ट्रिंग तो हमने ऑलरेडी देख रखे हैं. एक तो क्या देना पड़ता है? डेटा सोर्स इक्वल टू नेम ऑफ सर्वर, देन इनिशियल कैटलॉग इक्वल टू डेटाबेस का नेम. एंड इफ यू वांट टू यूज विंडोज ऑथेंटिकेशन तो यहाँ पर हम क्या देंगे? ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल टू थ्रू. नाउ एंड अगर आप SQL थ्रू ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं तो डेटा सोर्स इक्वल टू विल से सर्वर, देन विल से इनिशियल कैटलॉग इक्वल टू समथिंग कॉल्ड डेटाबेस नेम, and will say trusted connection equal to something, sorry, trusted connection नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? So user ID equal to user ID and password equal to password, जो भी password. Now beside this, in case of a code first, आपको एक एडिशनल चीज देनी पड़ती है. क्या देनी पड़ता है? प्रोवाइडर नेम. So beside this, code first के अंदर आपको एडिशनली प्रोवाइडर नेम देना पड़ेगा. प्रोवाइडर नेम में हम क्या देंगे? सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट. तो प्रोवाइडर नेम में आपको क्या देंगे? सो क्या देना पड़ेगा? सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग, सो वी आर यूजिंग SQL सर्वर. हर एक डेटाबेस के लिए प्रोवाइडर होता है. सो प्रोवाइडर नथिंग बट दी, वी कैन से, आप बोल सकते हैं इट्स अ डेटाबेस ड्राफ्ट. जैसे ऑरेकल यूज कर रहे हैं तो ऑरेकल के लिए ऑरेकल क्लाइंट था पहले पुराने वर्जन में, बट अभी एडियो.NET के जमाने में, बट एंटिटी फ्रेमवर्क में ऑरेकल क्लाइंट नहीं है. उसकी जगह आप ODBC यूज कर सकता है या फिर OLDB. ऑरेकल ODBC को भी सपोर्ट करता है, OLDB को सपोर्ट करता है. तो कोई भी OLDB डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLDB लिखेंगे. और अगर आप ODBC वाला डेटाबेस कनेक्ट करना चाहते हैं जैसे MySQL है, PostgreSQL, तो इससे सिस्टम डॉट डेटा डॉट ODBC को यूज करके भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं. तो फिलहाल 3 प्रोवाइडर है, पहले 4 प्रोवाइडर थे, ऑरेकल क्लाइंट भी अलग प्रोवाइड था, बट अभी
ऑर्कल ने क्या कर दिया, सो जब edu.net का जो वर्जन है उस वक्त ऑर्कल में कोई एनहांसमेंट नहीं हुई, बट जैसे ही ऑर्कल ने एनहांस करके ओडैक बना दिया, एक नया ड्राइवर बना दिया, तो फिर वो प्रोवाइडर एब्सोल्यूट हो गया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने उसको हटा दिया। राइट नाउ यू कैन यूज द ODBC टू एस्टैब्लिश द कनेक्टिविटी विद द बैकएंड और फिर डेटाबेस होता है। तो फिलहाल तुम SQL सर्वर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, SQL क्लाइंट को हम यूज करेंगे। SQL क्लाइंट इज स्पेशल ड्राइवर क्रिएटेड फॉर SQL सर्वर, मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड फॉर द SQL सर्वर। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ पर बनाएंगे, सो इट्स रिकमेंडेड, इट्स नॉट कंपल्सरी, सो इट्स रिकमेंडेड, क्या रिकमेंडेड है, टू पुट द कनेक्शन स्ट्रिंग इन web.config। सो web.config के अंदर जो कनेक्शन स्ट्रिंग का आप रख सकता है। web.config आपको ऑलरेडी पता है क्या है, so web.config is an XML file which contains the configuration setting that is supposed to be accessed throughout the application of that. So you can put the connection string into the web.config file using the connection string tab होता है। So connection string tab से उसको कनेक्शन स्ट्रिंग टैब के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग को क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। सो कनेक्शन स्ट्रिंग्स, ठीक है। Now let's go to the web.config and we'll add the connection string. Now I just want to SQL Server name, so I'll start with the Management Studio, SQL Server Management Studio. So I'll go to the web.config here. In the web.config at the 8 before Entity Framework tab, so we can add the connection string. Not compulsory, you can add it at the top also, but I will always recommend to use this particular location in the web.config to add the connection string here. Now that ensure that Entity Framework is already installed. So by chance अगर आपका Entity Framework का कोई इंस्टॉलेशन रह गया या फिर आप भूल गए, तो आपको ध्यान में आएगा कि Entity Framework है ही नहीं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। So connection strings में we can add the connection string. You can add the multiple connection strings here. So web.config is case sensitive. It's XML. XML is always case sensitive. To see small s, capital S at the end of strings. It's multiple. So we can add the connection string using add command, and you can add multiple connection string here. So how we can add the multiple connection string here? So less than add space connection string, and then we can specify the less than add space connection string equal to, then we can have the double quote, and in double quote we can specify the server name. Sorry, connection string. So in connection string, the first thing is data source. In the data source, we'll specify the server name. I copied this server name here. So I want to connect with this server. So I'm putting this server name. So if you want to connect with another server, so you can put another server name. For database, so in database, sorry, initial catalog. So in initial catalog, so we'll put the name of database. So we'll say code first DB 2026-1. Fine. So code first 2026-1. So this is the database name. So I want to use the SQL Server authentication this time. In previous example, we had used the Windows authentication. So here we can use the SQL Server authentication. So how we can connect here? So because here I have the user ID and password. So I can use the user ID, user space ID equal to SA, and password is here 123. Fine. Now the next thing that you need to specify in the connection string is the provider name, and the provider name is the system.data.SQL. So this is the provider name that I'm going to use to connect with SQL Server. So you can create a multiple connection strings here. Now, how your context class will come to know that it want to use this particular connection string. So context class को कैसे पता चलेगा कि यही connection string उसके लिए बना गया. तो we are following the convention. फिलहाल तो हम क्या follow कर रहे हैं? Conventions को follow कर रहे हैं. Later on override the conventions. तो conventions को follow कर रहे हैं. तो convention में basically क्या है? Convention में तो कन्वेंशन में बेसिकली यहाँ पर कन्वेंशन क्या है कि नेम ऑफ द कनेक्शन स्ट्रिंग शुड बी सिमिलर टू कॉन्टेक्स्ट क्लास नेम। अगर कॉन्टेक्स्ट क्लास का नेम और कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम अगर सेम है तो इट विल ऑटोमेटिकली यूज दैट पर्टिकुलर कनेक्शन स्ट्रिंग। तो यूज द नेम प्रॉपर्टी एंड द नेम प्रॉपर्टी वी कैन पुट द कंपनी कॉन्टेक्स्ट हियर। तो नेम प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या पुट करेंगे? कंपनी कॉन्टेक्स्ट। So it will tell the context class that please use this particular connection string with that. So using this connection string, your context class will establish the connectivity with the backend, and then it will perform whatever database operation that need to be performed. Now in the next step, so once we do this, the next step that we have is, so next step is use the context class. So right now, so condition क्या है यहाँ पर? So जो भी database name आप दोगे कहाँ पर? Initial catalog के अंदर. So condition is that database should not be the part of your server, or it should not exist, or if it exists, it should be blank. अगर वो exist है तो blank होना चाहिए, या फिर वो exist नहीं होना चाहिए. So दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए. तो फिलहाल तो नहीं है वो.
तो यहाँ पर उसको हम यूज करेंगे. सो हाउ वी कैन यूज दिस एम्प्लॉय. So we'll go to the controllers, we'll right click here, we'll say add controller, so controller add करेंगे यहाँ पर. So MVC5 controller empty and we'll put some name to this controller called the test controller. तो इसको हमने नाम दे दिया test controller. तो यहाँ पर टेस्ट कंट्रोल नाम से कंट्रोल बना दिया. तो नाउ विल यूज दी कंपनी कॉन्टेक्स्ट. तो कंपनी कॉन्टेक्स्ट यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या यूज करना पड़ेगा. नीड टू यूज थर्ड models. So models namespace use करना पड़ेगा with company context is a part of models namespace. So here we can create the object of company context. So once we create the object of company context, we can say this dot cc dot emp dot to list. So I want to display a list of employee into the index view. So here I'm passing the employees by converting it to list into index view. So we'll add index view here. So it's MVC5 view. So without layout. So right now I'm not using any layout here. And we'll make this view strongly typed. So we'll say model enumerable collection of. So enumerable collection of here we'll say code using code first dot models dot emp. So by this we are telling to the MVC this is strongly type view which is connected with the enumerable collection of EMP. So if any action calls this particular view should pass a list of employees to this particular view. So we are getting the list of employees. So we'll display that list of employee in the form of table. So table format में उसको display करेंगे. So we'll say T head and we can say TR, TH. We'll say we can use the helper. So which helper we are going to use? Display name for. So display name for P implies P dot EMP ID. Then so here we'll say display name for EMP name and then so display name for something called address and here we'll say display name for email ID and display name for mobile number and display name for salary. Now there is no property to display the DPT ID or DPT name. तो DPT ID और DPT name के लिए कोई property यहाँ पर नहीं है. तो salary will say and will say T body and T body के लिए will say for each where temp in body. ठीक है. Now here we'll say TR and we'll say TD at that HTML dot display for. In a display for we'll say P implies temp dot emp ID. So temp dot something called so temp dot emp बोल दिया यहाँ पर मैंने. तो emp dot emp ID. Then what I'll do, so I'll just copy this and I'll paste it here. We'll say emp name here. And in emp name we'll say address. Then we'll say email ID. Then we'll say mobile number. And then we'll say salary. ठीक है. So salary here. Now let's run this. So हमने अभी कुछ किया नहीं, हमने सिर्फ क्या किया, कॉन्टेक्स्ट को यूज किया और आपके डेटाबेस को यूज कर कॉन्टेक्स्ट को यूज किया. तो जैसे कॉन्टेक्स्ट को यूज किया इट विल ऑटोमेटिकली जनरेट दी डेटाबेस. वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डेटाबेस को जनरेट करेगा. तो डेटाबेस को क्या करेगा, जनरेट करेगा. तो यहाँ पर लिस्ट आ गई, सारी चीजें ठीक है. तो और यहाँ पर आप देखोगे तो डेटाबेस में जाओगे तो रिफ्रेश. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू दी कन्वेंशंस. नाउ ध्यान देना, बाद में हम कन्वेंशंस को राइट करेंगे तो कन्वेंशंस आप भूल जाओगे. तो कन्वेंशंस का भी ध्यान देना. तो यहाँ पर डेटाबेस बन गया कोड फर्स्ट 2026-1. ये कल का डेटाबेस, ये आज हमने बनाया -1. तो इफ यू एक्सपांड दिस यू विल फाइंड समथिंग अमेजिंग. सो इट विल क्रिएट अ टेबल DPTs एंड EMPs. तो DPTs नाम का टेबल बना. सो क्लास नेम है DPT, टेबल बन गया DPTs. ये कन्वेंशन है. और DPT टेब क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टी है DPT ID जो न्यूमेरिक टाइप की है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, प्राइमरी की. सो इट विल ऑटोमेटिकली कन्वेंशन है. कन्वेंशंस को हमने ओवरराइड नहीं किया. यू कैन ओवरराइड द कन्वेंशन. सो DPT ID प्राइमरी की बन गया. DPT नेम क्या बन गया, प्रॉपर्टी. सो DPT नेम वहां पर किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का. यहाँ पर क्या बन गया,
एंड varchar max, वहां पर वो int 64 टाइप का है, यहाँ पर क्या बन गया big int. Fine. So data type mapping भी खुद करेगा entity framework. So EMPs. Now you can also force the entity framework to map with another type, but बाय कन्वेंशन जा रहे हैं तो कन्वेंशन से जो होगा होगा. सो ईएमपी नाम का वहां पर क्लास है, यहाँ पर ईएमपी नाम का टेबल बन गया. सो ईएमपी आईडी वहां पर एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पर प्राइमरी की हो गई. नाउ ईएमपी नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सैलरी. और मैंने क्या बोला, so due to the relationship between the DPT and EMP, it will automatically generate a primary key foreign key relationship between the EMP and DPT, and it will insert a foreign key which will point to the primary key of a DPT. तो यहाँ पर foreign key insert हो गई है. तो डीपीटी अंडरस्कोर डीपीटी आईडी और एक किसको पॉइंट करेगा, डीपीटी के प्राइमरी की. नाउ दिस विल बी देयर ओनली व्हेन इफ यू क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन दी, वी कैन से क्लासेस. तो क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप बनाएंगे तभी ये फॉरेन की आपकी जनरेट होगी. बट इस फॉरेन की का आपको कोई यूज मिलेगा सी शार्प कोड में? नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए सी शार्प में कोई प्रॉपर्टी नहीं है. सो सी शार्प में कोई प्रॉपर्टी नहीं है. इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए सी शार्प में कोई प्रॉपर्टी नहीं है. तो वी नीड टू ओवरराइड द कन्वेंशन. तो कन्वेंशन को हमेशा ओवरराइड करना पड़ेगा. तो बेसिकली कन्वेंशन को ओवरराइड करेंगे तभी आपका काम बनेगा. तो कन्वेंशन को ओवरराइड कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे. फिलहाल तो हम इसमें भी थोड़ा डेटा फिलअप करेंगे. एंड डेटा फिलअप करने के बाद व्हाट विल डू, सो वी विल एक्सेस द डेटा एंड विल सी द डेटा अपीयर्स और नॉट. तो यहाँ पर डीपीटीज में जाएंगे. So I'm adding some DPT here, computer, and we'll add the DPT cells here. ठीक है. And suppose purchase. तीन डिपार्टमेंट ऐड कर देंगे यहाँ पर. So computer cells and purchasing. तो यहाँ पर जैसे आए तो EMPs में जाएंगे. नाल से edit top 200 rows. And edit top 200 rows में जाके यहाँ पर एक employee ऐड कर देंगे. So Ramesh. So say Akudi Pune. Email ID so ramesh@hotmail.com. Mobile number, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And salary 12,000. Department ID 1. Suresh. And we'll say change word. So we'll say suresh@gmail.com. Mobile number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And we'll say 15,002. Okay. Now I'll just refresh. So you'll find this data. आसान है. Go first. Now I want DPT name here. तो यहाँ पर मुझे DPT name चाहिए. तो यहाँ पर मुझे DPT name चाहिए. तो बाय क्रिएटिंग दिस प्रॉपर्टीज, ये जो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर बनाई है, सो ये जो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर क्रिएट की है ईएमपी और डीपीटी के बीच में. सो डीपीटी का ऑब्जेक्ट बना दिया एम्प्लॉय में और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट लिस्ट बना दिया डीपीटी के अंदर. तो इससे ये दो प्रॉपर्टीज तो बन जाएगी. अभी मुझे डीपीटी नेम वहां पर चाहिए तो एक ऑप्शन मुझे क्या है, सो मैं इनके बीच में ज्वाइन क्रिएट करूँ. बट ज्वाइन कैसे क्रिएट करेंगे? ज्वाइन के लिए भी तकलीफ है. क्यों? क्योंकि इनमें रिलेशनशिप तो बन गई है बट ज्वाइन के लिए यहाँ पर डीपीटी आईडी नाम का प्रॉपर्टी है बट एम्प्लॉय में डीपीटी आईडी नाम का कोई प्रॉपर्टी नहीं है. तो हाउ वी कैन एक्सेस इट? तो ज्वाइन कैसे करें? ज्वाइन नहीं कर पाएंगे फिलहाल तो, क्योंकि हमने कन्वेंशन को फॉलो किया और कन्वेंशन में क्या होता है, ऑटोमेटिकली बैकएंड में फॉरेन की जनरेट करके डाल देता है. वो फॉरेन की यहाँ नहीं होती. आप चाहे तो यहाँ बना सकते बट हमने नहीं बनाया. सो क्यों नहीं बना? क्योंकि हम कन्वेंशन फॉलो कर रहा है. तो अभी फिर दूसरा ऑप्शन क्या बचा है? ज्वाइन नहीं क्रिएट कर सकते तो ज्वाइन नहीं क्रिएट कर सकते हैं तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? क्या है भाई दूसरा ऑप्शन? ज्वाइन नहीं कर सकते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है नेविगेशन प्रॉपर्टीज. तो इन प्रॉपर्टीज को हम नेविगेशन प्रॉपर्टी बना सकते हैं. तो अभी तो सिर्फ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए इन प्रॉपर्टीज को हमने बनाया. इसमें क्या हो रहा है, तो वन एम्प्लॉय कनेक्टेड विथ वन डिपार्टमेंट एंड वन डिपार्टमेंट कनेक्टेड विथ मल्टीपल एम्प्लॉय. तो इनको हम नेविगेशन प्रॉपर्टी बोल के तभी यूज कर सकते हैं when you define them using virtual keyword. So when you define them using virtual keyword. So any property यहाँ पर ऐड कर देता हूँ so that you will be यहाँ. So any property to define using virtual keyword. पहला चीज, and it is used to create relationship, जिसको यूज करके हम रिलेशनशिप बना.
will be a navigation property. तो ये दो प्रॉपर्टी तो रिलेशनशिप बना रहे हैं, बट ये वर्चुअल नहीं है, तो इसको हम जैसे वर्चुअल बना देंगे तो दिस प्रॉपर्टीज विल स्टार्ट वर्किंग एज एन नेविगेशन प्रॉपर्टी। तो उसका आप नेविगेशन प्रॉपर्टी बोल के क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। तो यहाँ पर भी हम वर्चुअल बना देंगे, तो वर्चुअल एंड वर्चुअल। तो जैसे वर्चुअल कीवर्ड से इसको डिफाइन कर देंगे, नाउ दिस विल एक्ट एज ए नेविगेशन प्रॉपर्टी। तो जैसे नेविगेशन प्रॉपर्टी बोल के एक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप डिपार्टमेंट नेम ऐड कर सकते हैं। तो इट्स HTML है एंड डिस्प्ले नेम फॉर, एंड यहाँ पर बोल देंगे सब p implies p डॉट dpt डॉट, तो dpt डीपीटी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय में, किसका, डीपीटी का। तो यहाँ पर भी हम क्या हो सकता है, सो एट दैट HTML डॉट, सो डिस्प्ले नेम फॉर, यहाँ पर क्या बोलेंगे, सॉरी डिस्प्ले फॉर, नॉट डिस्प्ले नेम फॉर, सो यूज द डिस्प्ले फॉर। और डिस्प्ले फॉर में यहाँ पर क्या होगा, सो p implies emp डॉट, फिर से dpt डॉट dpt नेम, ठीक है ना। इसको रन करेंगे यहाँ पर, तो जैसे इसको हम रन करेंगे तो टोटल हैपन, will get the dpt name, so computer and sense, ठीक है ना। बट यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है, सो दिक्कत एक ही हो रही है कि हमें अभी डीपीटी आईडी प्रॉपर्टी का एक्सेस नहीं मिल रहा, सो डीपीटी आईडी प्रॉपर्टी का एक्सेस नहीं मिल रहा। तो आप चाहे तो डीपीटी आईडी नाम की प्रॉपर्टी इसमें ऐड कर सकता है और उसके थ्रू फॉरेन की जनरेट कर सकता है, बट दैट विल सी, हम उसको देखेंगे आगे ना। इफ आई मेक एनी चेंजेस, तो मैंने कुछ और चेंजेस कर लिए, तो फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ वी ऐड वन property here in an employee called date time and उसको हमने बोल दिया ज्वाइन डेट। तो ज्वाइन डेट नाम का एक प्रॉपर्टी ऐड कर दिया एम्प्लॉय के अंदर, ज्वाइन डेट नाम का एक प्रॉपर्टी ऐड कर दिया एम्प्लॉय के अंदर। उसके बाद इसको हम रन कर रहे हैं प्रोजेक्ट को। तो जैसे ही आप इसको रन करोगे तो व्हाट विल हैपन, सो इट विल गिव यू एरर। तो यहाँ पर आपको एरर आ जाएगी, स्लैश इंडेक्स ना। इस एरर को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा और क्या करना है वो भी एरर बता देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, द मॉडल बैकिंग द कंपनी कॉन्टेक्स्ट हैज चेंज सिंस द डेटाबेस वाज क्रिएटेड, कंसीडर यूजिंग कोड फर्स्ट माइग्रेशन टू अपडेट डेटाबेस। तो ये क्या है, द मॉडल बैकिंग द कंपनी कॉन्टेक्स्ट हैज चेंज। तो जो मॉडल है जो कंपनी कॉन्टेक्स्ट को बैक कर रहा है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो एडमिट द चेंजेस, कब चेंज हुआ, आफ्टर क्रिएशन ऑफ योर डेटाबेस। पहले डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, उसके बाद आपने क्या किया, चेंज किया। तो डेटाबेस को कैसे पता चलेगा भाई वो चेंज, क्योंकि आपने एक तो प्रॉपर्टी ऐड कर दी एम्प्लॉय में, वो डेटाबेस में तो आनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो इफ यू वांट टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस मेड टू अ मॉडल क्लासेस और their relationship or a context into a database after creation of a database, we need to use one utility called code first migration. So consider using code first migration to update database, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप को भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप जो बचा है इसमें, तो कोड फर्स्ट माइग्रेशन, तो यूज माइग्रेशन, यूज कोड फर्स्ट माइग्रेशन बोल देंगे, ज्यादा बेटर वर्ड है। तो कोड फर्स्ट माइग्रेशन क्या है, तो कोड फर्स्ट माइग्रेशन इज यूटिलिटी which enables you to reflect changes made to model classes in your database after creation of database। फर्स्ट टाइम तो डेटाबेस आपका बन जाएगा जब आप रन करोगे, फर्स्ट टाइम कॉन्टेक्स्ट को यूज करोगे, रन करोगे, डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो क्रिएट होने के बाद अगर कुछ चेंजेस करता है आपकी एंटिटी क्लासेस के अंदर, उन रिलेशनशिप के अंदर, तो उसको आप माइग्रेट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं यूजिंग यूटिलिटी कॉल्ड कोड फर्स्ट माइग्रेशन। तो कोड फर्स्ट माइग्रेशन यूटिलिटी को कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, तो अनेबल माइग्रेशन, ये आपको वन टाइम करना पड़ेगा। सो अनेबल माइग्रेशन स्टेप एक ही बार करनी है वन टाइम आपके प्रोजेक्ट के अंदर। इट विल जनरेट ऑल द नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या करेगा, इट विल जनरेट ऑल नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशन, ऑल necessary configurations required for migration। माइग्रेशन के लिए जो रिक्वायर्ड
enable migration, so it will generate all necessary configuration requires for migration. तो माइग्रेशन के लिए जो रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन है सारी यहाँ पे जनरेट करेगा वन टाइम, ठीक है, वन टाइम जनरेट करेगा, तो इट विल जनरेट ऑल नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड फॉर माइग्रेशन। ना दूसरा क्या है यहाँ पर अनेबल माइग्रेशन। तो अनेबल माइग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, तो एक कमांड फायर करनी है। सो फॉर दिस वी नीड टू फायर कमांड अनेबल माइग्रेशंस नाम की कमांड है, इसको हमें फायर करना है। तो ये एक ही बार करना है एक प्रोजेक्ट के अंदर। तो आपकी प्रोजेक्ट में पहले जाके आपको देखना है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर माइग्रेशंस इसके पहले हुआ है क्या। तो आपके प्रोजेक्ट में माइग्रेशंस इसके पहले हुआ है वो कैसे पता चलेगा, अगर माइग्रेशंस हुआ है तो यहाँ पर माइग्रेशंस नाम का एक फोल्डर क्रिएट होगा। तो इफ योर प्रोजेक्ट डू नॉट कंटेन एनी माइग्रेशंस फोल्डर दैट मीन्स देयर इज नो माइग्रेशन टेल। तो यू नीड टू अनेबल द माइग्रेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले माइग्रेशन अनेबल करना पड़ेगा। तो इट विल क्रिएट अ माइग्रेशन फोल्डर, इट विल क्रिएट ऑल नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशन फॉर द माइग्रेशन। तो जो एंटिटी क्लास के अंदर चेंजेस हो रहे हैं उसको हम कहाँ पर माइग्रेट करने वाला है, डेटाबेस के अंदर। तो उसके लिए नेसेसरी चीजें करेगा। तो ये कमांड सबसे पहले फायर कर देंगे यहाँ पर अनेबल डैश माइग्रेशन। कहाँ पर करेंगे, पैकेज मैनेजर कंसोल के अंदर, जहां से आपने एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल किया था। तो पैकेज मैनेजर कंसोल के अंदर एक कमांड फायर करेंगे अनेबल माइग्रेशंस। तो जैसे ही कमांड फायर करेंगे अनेबल माइग्रेशंस, इट विल क्रिएट अ माइग्रेशन फोल्डर, इट विल क्रिएट अ इनिशियल माइग्रेशन, इट विल क्रिएट ऑल नेसेसरी थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड टू रिफ्लेक्ट द माइग्रेशन। तो अगर अभी आप प्रोजेक्ट में जाओगे तो यहाँ पर आपको माइग्रेशन फोल्डर मिल जाएगा और उसमें एक इनिशियल माइग्रेशन भी क्रिएट कर दिया। तो इनिशियल माइग्रेशन क्या होता है, अभी के स्टेट में डेटाबेस क्या है, तो उसमें क्या क्या एग्जिस्ट है तो अभी के स्टेट में, क्योंकि उसमें जब चेंजेस होगी तो नए नए माइग्रेशन ऐड हो जाएंगे उसमें। तो ये इनिशियल स्टेट है आपकी डेटाबेस की। तो ये सिशाप कोड है जो इनिशियल स्टेट है। और यहाँ पर क्या होता है कॉन्फ़िगरेशंस में कि माइग्रेशन कैसे करना है उसका कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होता है। और यहाँ पर आप चाहे तो सीडिंग भी कर सकता है। तो सीडिंग वीडिंग क्या है वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल तो माइग्रेशन को अनेबल करेंगे। अनेबल हो गया, देन ऐड माइग्रेशन। ऐड माइग्रेशन, एक माइग्रेशन ऐड करेंगे एवरी टाइम व्हेन यू वांट टू रिफ्लेक्ट द चेंज। इस पर्टिकुलर स्टेप को हम कब करेंगे, जब भी आपको कोई चेंज को क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है डेटाबेस के अंदर। तो ऐड माइग्रेशन एवरी टाइम व्हेन यू वांट टू रिफ्लेक्ट द चेंज। तो जब भी चेंज रिफ्लेक्ट करना है डेटाबेस में इसको करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए क्या बोलेंगे यहाँ पर ऐड माइग्रेशन। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, पुट द नेम ऑफ माइग्रेशन। इट्स रिकमेंडेड टू पुट द नेम ऑफ माइग्रेशन बिकॉज इस नेम से बाद में आप उस माइग्रेशन को रिवर्ट कर सकते हैं, आगे पीछे लेके जा सकता है। अगर नेम नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट इट विल जनरेट अ नंबर, एक नंबर जनरेट करेगा। तो जैसे यहाँ पर तो इनिशियल है तो नंबर जनरेट करेगा। नंबर से आपको समझ में नहीं आएगा क्यों क्या माइग्रेशन था, तो हर एक माइग्रेशन को एक यूनिक नेम देंगे। तो जिससे बाद में हमें अगर उस माइग्रेशन को हटाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, तो उस नंबर से आप जा सकते हैं। तो ऐड माइग्रेशन कमांड से, इस कमांड से क्या होगा, इट विल जनरेट necessary code, C# code, necessary C# tool to reflect changes in database। इसमें दो मेथड होते हैं, अप एंड डाउन। अप मेथड के अंदर डेटाबेस में चेंजेस अपडेट करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा वो क्रिएट करता है। डाउन मेथड के अंदर डेटाबेस में से चेंजेस हटाने के लिए क्या क्या होता है वो वहां पर डालता है। जैसे यहाँ पर भी देखोगे तो इनिशियल माइग्रेशन के अंदर भी दो मेथड्स है। एक मेथड आप में क्या डाला उसने, क्रिएट टेबल, कौन सा टेबल, रिपीट टेबल, और ये सारा कोड डाल दिया। और क्रिएट टेबल, ईएमपी टेबल, ये सारा डाल दिया। और डाउन में देखोगे तो क्या है, ड्रॉप फॉरेन की, ड्रॉप इंडेक्स, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल, तो हटा दो। तो उसी तरह जब आप माइग्रेशन ऐड करते हैं तो हर एक माइग्रेशन के लिए अप एंड डाउन मेथड क्रिएट होती है और उस मेथड के अंदर नेसेसरी आपको इसमें क्या है वो समझने की जरूरत नहीं है, वो खुद जनरेट कर लेगा, खुद अपडेट कर लेगा, फाइन। तो एक माइग्रेशन ऐड कर देंगे फिलहाल यहाँ पर, उसको हम बोल देंगे समथिंग कॉल्ड जेडीटी, कुछ नाम किया। तो जेडीटी क्यों दे रहा हूँ, ज्वाइन डेट है इसलिए। तो कोई भी मीनिंगफुल नेम दे दो सो दैट आपको बाद में समझ में आएगा कि माइग्रेशन क्या है। तो जैसे जेईटी हम ऐड करेंगे तो इस ऐड माइग्रेशन से वो सारा नेसेसरी कोड जनरेट हो जाएगा सी शार्प का, जो चेंजेस रिफ्लेक्ट करने के लिए जरूरी है। इट विल नॉट अपडेट डेटाबेस, वो डेटाबेस में अपडेट नहीं करेगा। इट विल नॉट अपडेट इट इन डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर अपडेट नहीं करेगा। तो डेटाबेस के अपडेट करने के लिए तीसरा स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा, तो अपडेट डेटाबेस। तो अपडेट डेटाबेस एवरी टाइम व्हेन यू ऐड न्यू माइग्रेशन, जब नया माइग्रेशन ऐड कर देंगे तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। सो अपडेट डेटाबेस, अपडेट डेटाबेस कमांड की क्या करेगा, सो इट विल एक्सिक्यूट दैट कोड इन डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर उस कोड को एक्सिक्यूट करेगा। तो रिफ्लेक्ट इट इन डेटाबेस, तो रिफ्लेक्ट इट इन डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो डेटाबेस के अंदर उसको क्या करेगा,
रिफ्लेक्ट करेगा, तो अपडेट डेटाबेस, सो इट विल एग्जीक्यूट दैट कोड इन डेटाबेस, रिफ्लेक्ट इट इन अ डेटाबेस होता है। सो डेटाबेस के अंदर उसको हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो इट विल एक्जीक्यूट दैट कोड इन डेटाबेस, रिफ्लेक्ट इट इन अ डेटाबेस, तो डेटाबेस के अंदर उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, समझा? सो रिफ्लेक्ट इट इन अ डेटाबेस। ना अभी ये कोड जनरेट हो गया होगा, जनरेट हो गया, देखो जेडीटी नाम का माइग्रेशन बन गया। उसमें अब मेथड में क्या हो रहा है, एक कॉलम ऐड हो रहा है, कहाँ पर, ये पीस के अंदर, किस नाम से, ज्वाइन डेट से। और जब हम डाउन करेंगे तो रिमूव कर देगा कॉलम को, ड्रॉप कॉलम। तो इससे डेटाबेस में चेंज हो गया क्या? नहीं, डेटाबेस में कोई चेंज नहीं होगा। रिफ्रेश करेंगे, नो ज्वाइन डेट, यहाँ कोई ज्वाइन डेट नहीं आएगी ना। इफ यू गो टू हियर, तो यहाँ पर आपको जेडीटी नाम का माइग्रेशन दिखेगा। अगर आप नाम नहीं देंगे तो ऐसा नंबर आएगा 2026 लाइक दिस। तो ये नंबर से आपको बाद में नहीं पता चलेगा ये माइग्रेशन कौन सा था, तो उसको नाम देना है। तो नाम देने से आपको बाद में पता चले, हाँ जेडीटी नाम का माइग्रेशन है जिससे हमने ज्वाइन डेट ऐड किया था। ठीक है, तो अभी डेटाबेस में नहीं गया, तो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करने के लिए उसको हम क्या बोलेंगे, अपडेट डैश। या तो जैसे अपडेट डैश डेटाबेस बोलेंगे तो इट विल क्रिएट अ सीक्वल क्वेरी एंड इट विल फायर इट ऑन द डेटाबेस। तो सीक्वल क्वेरी क्रिएट करेगा और उसको डेटाबेस के अंदर फायर करेगा। तो अभी ये फायर होगी, तो फायर होगी तो अभी यहाँ पर जैसे कॉलम्स को रिफ्रेश करोगे, यू विल फाइंड वन मोर कॉलम, ज्वाइन डेट। हाँ, तो ज्वाइन डेट वहां पर बन जाएगा। तो यहाँ पर सो ज्वाइन डेट में बाय डिफॉल्ट डेट आ रही है, इनिशियल डेट। तो सो यहाँ पर मैंने बोल दिया 1/1/2010, और यहाँ पर बोल दिया 1/1/2012। ठीक है, वैल्यू डाल दिया। आप चाहे तो फिर अभी ज्वाइन डेट कहाँ ऐड कर सकता है, यहाँ पर ऐड कर सकता है। नहीं करना है तो मत करो, करना है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ज्वाइन डेट, और यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, ज्वाइन डेट। सो ऐड द ज्वाइन डेट हियर। तो यहाँ पर इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, और सॉरी कहाँ गया भाई, रन करेंगे इसको। नॉट ओनली प्रॉपर्टी, तो ज्वाइन डेट आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो नॉट ओनली द प्रॉपर्टी, यू कैन ऐड एंटायर मॉडल। चलो मुझे लगा नहीं, अभी मुझे और एक मॉडल चाहिए, एरिया। तो मॉडल्स में जाएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, वैसे एड अ क्लास, एक क्लास हम ऐड करेंगे। एंड इस क्लास के अंदर यहाँ पर हम क्या लेंगे, सो एरिया, सो विल पुट अ नेम एरिया। एरिया नाम का एक क्लास ऐड करेंगे, और एरिया क्लास के अंदर विल क्रिएट द प्रॉपर्टीज है। सो विल से पब्लिक int 64 एरिया आईडी, एंड सपोज एरिया। पर मैं चाहता हूँ कि एरिया आईडी जो है फॉरेन की हो जाए डीपीटी के अंदर। ठीक है, तो एरिया आईडी फॉरेन की हो जाए डीपीटी के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि एक एरिया के अंदर कितने डिपार्टमेंट हो, मल्टीपल। तो यहाँ पर मुझे नेविगेशन प्रॉपर्टी बनाना है तो वर्चुअल बनाऊंगा, अगर नहीं बनाना है तो वर्चुअल की जरूरत नहीं है। तो लिस्ट ऑफ डीपीटी है, और यहाँ पर क्या लेंगे, डीपीटी। वाइस वर्सा आप क्या लेंगे, तो वाइस वर्सा जब डीपीटी में जाएंगे तो वाइस वर्सा यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, एरिया का। अगर उसको भी नेविगेशन प्रॉपर्टी बनाना है तो वर्चुअल एरिया एंड एरिया हियर। बट इससे क्या होगा, तो इससे एक फॉरेन की ऐड हो जाएगी डेटाबेस के अंदर। फॉरेन की ऐड हो जाएगी डेटाबेस के अंदर, कौन से टेबल में, डीपी टेबल के अंदर, बराबर। तो डीपी टेबल के अंदर फॉरेन की ऐड हो जाएगी। तो जब फॉरेन की ऐड होगी तो खुद से जनरेट करेगा वो फॉरेन की, जैसे यहाँ पर उसने खुद से जनरेट किया डीपीटी अंडरस्कोर डीपीटी आईडी, और उस फॉरेन की का एक्सेस मुझे नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पर वो प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं कैसे एक्सेस करूँ सी शार्प कोड के थ्रू। तो अभी मैं बताना चाहता हूँ इंटी फ्रेमवर्क को कि एरिया आईडी का फॉरेन की होना चाहिए डीपीटी में, बट उसका जो नेम है वो बाय कन्वेंशन हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी के थ्रू ऐड करेंगे। तो ये जो नेम है, इस ये जो प्रॉपर्टी एरिया आईडी, इसको यहाँ पर मैं कॉपी करके कहाँ पर डाल दूंगा, सो डीपीटी के अंदर डाल दूंगा। तो एक तो वर्चुअल प्रॉपर्टी बनाएंगे एरिया के लिए, साथ में जो एरिया क्लास के अंदर जो प्राइमरी की है, सो मेन प्रॉपर्टी है, की प्रॉपर्टी, उसको यहाँ पर हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे। तो अभी क्या करेगा, इट विल जनरेट अ फॉरेन की विद द नेम एरिया आईडी। अभी एरिया आईडी के नाम से फॉरेन की बनाएगा, ऐसे नहीं बनाएगा रैंडमली। तो एरिया आईडी नाम से फॉरेन की बनाएगा। तो इसका फायदा क्या है, शीशा आपको मेरी आईडी है, तो आप उस एरिया आईडी को यूज कर सकते हैं, आप ज्वाइन क्रिएट कर सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं उस एरिया आईडी प्रॉपर्टी के साथ। जैसे इसको रन करेंगे तो वापस क्या होगा,
तो जैसे इसको रन करेंगे और टेस्ट इंडेक्स को मैक्सेस करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, इट विल गेट यू सेम एरर. व्हाई एरर? बिकॉज now your context got changed after creation of database. So same error, the model backing the company context has changed in the database is created. Consider using code first migration to update the database. So that तो वापस से फिर हमें माइग्रेशन ऐड करना पड़ेगा इस चेंज के लिए. तो कैसे ऐड करेंगे? अभी अनेबल माइग्रेशन करेंगे नहीं, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ऐड माइग्रेशन. उसको हम नाम देंगे सर एरिया, जो भी नाम देना है आपको दे सकता है, और सारा नेसेसरी कोड जनरेट करेगा. सो इससे डेटाबेस में रिफ्लेक्शन होगी नहीं होगी? इससे तो सिर्फ C# कोड जनरेट होगा. डेटाबेस में रिफ्लेक्शन कब होगी? जब आप अपडेट डेटाबेस फायर करोगे. और अपडेट डेटाबेस फायर करोगे तो इट विल क्रिएट SQL कमांड्स एंड इट विल फायर ऑन डेटाबेस. इफ your database is not ready to accept that changes, then it will generate you the error. ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सॉरी, तो यहाँ पर फिर हम क्या बोलेंगे, अपडेट डेटाबेस. सो अपडेट डेटाबेस. तो अगर एरर आ गई तो आप लकी हो, नहीं आई तो मैं लकी हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है. एरर आ गई, ठीक है, तो आप लकी. चलो, तो एरर क्यों आ रही है? क्योंकि नाउ इट्स ट्राइंग टू ऐड द एरिया आईडी एज अ फॉरेन की इन अ डिपार्टमेंट टेबल. तो डिपार्टमेंट टेबल के अंदर एरिया आईडी को एज अ फॉरेन की ऐड करने की कोशिश कर रहा है. तो जब डिपार्टमेंट के अंदर एरिया आईडी फॉरेन की बोल के ऐड करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? सो उसको तकलीफ हो रही है. क्या तकलीफ हो रही है? क्योंकि जब यहाँ पर एरिया आईडी फॉरेन की बोल के ऐड करेगा इस डेटाबेस के अंदर, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उस एरिया आईडी के अंदर क्या वैल्यू डालें. क्योंकि एरिया टेबल तो क्या होगा, फ्रेश होगा, नया, उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा. पर यहाँ पर एरिया आईडी क्या डाले, और फॉरेन की है तो नॉन अवेलेबल आएगी, मतलब उसमें आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी कुछ तो कुछ. तो बोल रहा है कि भाई मैं नहीं इंसर्ट कर पा रहा हूँ फॉरेन की वैल्यू. तो बोल रहा है अल्टर टेबल स्टेटमेंट कॉम्प्लीट तो फॉरेन की कंस्टेंट इन डीपीटी इन एरिया आईडी तो कॉम्प्लीट ऑकर इन डेटाबेस हियर. तो ऐसे सिचुएशन में फिर आपको क्या करना पड़ेगा? सो यू नीड टू डिलीट द डेटा फ्रॉम डीपीटी टेबल. और डीपी टेबल से डेटा डिलीट होगा क्या? तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और इसको डिलीट किया, तो होगा डिलीट? नहीं होगा, क्योंकि डीपीडी की फॉरेन की कहाँ पर है, एम्प्लॉय के अंदर. तो पहले आपको एम्प्लॉय में जाके डेटा डिलीट करना पड़ेगा, और फिर डीपीटी में आएंगे, डीपीटी से डेटा डिलीट करेंगे, और फिर वापस इस अपडेट कमांड को, अपडेट डेटाबेस को हम क्या करेंगे, फायर करेंगे. तो माइग्रेशंस में हमेशा ये खतरा रहता है कि आपका डेटा गायब हो जाएगा, डेटा आपको डिलीट करने की जरूरत पड़ेगी. तो माइग्रेशन हम लाइव डेटाबेस पर कभी भी नहीं करता है. सो इट विल बी ऑलवेज इन अ डेवलपमेंट. आपके डेवलपमेंट मशीन में आपको जो करना है करो एक्सपेरिमेंट. लाइव डेटाबेस पर माइग्रेशंस कभी फायर नहीं करते. नो माइग्रेशन फॉर लाइव डेटाबेस. लाइव डेटाबेस में क्या करना है प्रोजेक्ट लेक्चर में देखेंगे. फिलहाल तो यहाँ पर आप अपडेट डेटाबेस फायर करोगे, अभी एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि अभी ब्लैंक हो गया ना डेटाबेस. तो एरिया ब्लैंक, डिपार्टमेंट ब्लैंक, एम्प्लॉय ब्लैंक. उसके बाद इसको रन करेंगे तो क्या होगा? सो कोई एरर आएगी? अभी एरर तो नहीं आएगी, बट एम्प्लॉय के रिकॉर्ड भी नहीं आएगी, क्योंकि एम्प्लॉय के रिकॉर्ड क्या हो गए, ब्लैंक हो गए. सो डिलीट कर दिया हमने. तो वापस हमें उसमें रिकॉर्ड ऐड करने पड़ेंगे, फिर जाके वो रिकॉर्ड्स क्या होंगे, आएंगे. तो यहाँ पर बोलेंगे टेस्ट इंडेक्स. फिलहाल पे कोई रिकॉर्ड ऐड नहीं करना, ब्लैंक ही रखेंगे इसको, क्योंकि मुझे कुछ और आपको बताना है इसमें. तो सपोज आपको ऐसे लगा कि अरे नहीं, ये एरिया टेबल और ये फॉरेन की मैंने गलती से ऐड कर दिया, आई डोंट वांट दैट. मेरा जो डेटाबेस ज्वाइन डेट के था उतना ही मुझे चाहिए था डेटाबेस. बाकी ठीक है, प्रोजेक्ट में मैंने बहुत सारी चीजें बनाई, बट डेटाबेस में मुझे एरिया नहीं चाहिए. ठीक है, तो अभी अगर देखो तो क्या होगा, यहाँ पर डेटाबेस को अगर आप रिफ्रेश करोगे टेबल को, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एरियाज भी बन जाएगा, एरिया आईडी बनेगी, एरिया नेम बनेगा. और डीपीडी के अंदर क्या ऐड कर दिया, एरिया आईडी फॉरेन की. अभी फॉरेन की हमने जो दी है वो आई, उसने खुद से नहीं बनाई. यहाँ पर उसने खुद से बनाई थी क्योंकि हमने वहां पर ईएमपी आईडी नाम का कोई, सॉरी डीपीटी आईडी नाम का कोई कॉलम नहीं बनाया, तो उसने खुद ही जोड़ लिया डीपीटी अंडरस्कोर डीपीटी आईडी. ठीक है, और अभी एरिया आईडी का हमें एक्सेस भी है. चलो, तो मुझे लगा कि नहीं गलती से हो गया, मुझे नहीं करना है, मुझे वापस जाना है ज्वाइंट. तो आप वापस जा सकते हैं यूजिंग दिस अपडेट डेटाबेस कमांड. सो अपडेट डेटाबेस कमांड से आप जा सकते हैं. अपडेट डेटाबेस कमांड के अंदर एक पैरामीटर पास करेंगे टारगेट माइग्रेशन, और टारगेट माइग्रेशन के अंदर आप माइग्रेशन का नेम देंगे, तो उस माइग्रेशन तक वापस जाएगा. आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है. अगर आपने पीछे वाले माइग्रेशन का नाम दिया तो पीछे जाएगा, आगे वाले दिया तो आगे जाएगा. अभी आपका जो करंट माइग्रेशन है कौन सा है, एरिया वाला. तो उसको मुझे बोलना है कि नहीं, ज्वाइन डेट तक वापस जाओ. तो कैसे बोलेंगे यहाँ पर? सो यहाँ पर बोलेंगे समथिंग को अपडेट डैश डेटाबेस. तो अपडेट डैश डेटाबेस में यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, गो बैक. सो वापस जाओ. कैसे जाओ? तो टारगेट माइग्रेशन. सो टारगेट माइग्रेशन में हम क्या बोलेंगे,
वापस जाओ, कहाँ तक वापस जाओ? जेडीटी तक। तो जेडीटी जो माइग्रेशन हमने बनाया था वहां तक वापस जाओ। ये सब करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि इसमें डेटा लॉस होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए लाइव डेटाबेस में बिल्कुल नहीं करना है। तो ये क्या हो रहा है, सब डेटाबेस टारगेट माइग्रेशन, द टर्म अपडेट डेटाबेस, सॉरी बी रह गया, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर वापस जा रहा हूँ जेडीटी तक। कितना अच्छा है, फुल कंट्रोल है डेवलपर के हाथ में, जो भी डेटाबेस में जनरेट करना है, नहीं करना है, कम करना है, बढ़ाना है, घटाना है, कौन सी फील्ड डालनी है, सब डेवलपर खुद देख लेगा। सो डीपीटीज है, ईएमपीज, एरिया गायब हो गया, ईएमपीज के अंदर क्या है, ज्वाइन डेट फिलहाल है, तो आप पीछे भी जा सकते हैं। ठीक है, आपको लगा नहीं इनिट में जाना, तो आप इनिट डाल दो, इनिट नाम का माइग्रेशन है यहाँ पर, इनिशियल क्रिएट, तो जेडीटी भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। मुझे लगा नहीं नहीं यार गलती होगी, जेडीटी वापस मुझे एरिया तक चाहिए, तो यहाँ पर वापस एरिया डालना, तो वापस उसको बोला अपडेट, गो टू द एरिया। तो अगर आगे है तो आगे लेके जाएगा, पीछे है तो पीछे लेके जाएगा। सो वापस एरिया में हमने यहाँ पर क्या किया, नहीं रिफ्रेश कर दें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बोल देंगे एरियाज आ गया वापस, और एरिया आईडी भी आ गई, एरिया नेम भी आ गया, और डीपीटी इसके अंदर हम क्या आ गया, फिर एरिया आईडी डिफॉल्ट किया। तो ये कोड फर्स्ट माइग्रेशन है, और कोड फर्स्ट आप इस तरह क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। तो आज इसमें यही छोड़ रहे हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसको क्या करेंगे, वापस से कंटिन्यू करेंगे, और इसमें कुछ और चीज़ों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसमें और कुछ चीज़ों को हम क्या करेंगे, तो ऐड करेंगे। ठीक है।